Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm Dr. Sadaf Zehra, working as a general physician with Sehat Kahani for the past 6 months. And Sehat Kahani basically is a telemedicine platform that is providing online consultations as well as running e-clinics throughout Pakistan. So this Ramzan, in fact, Sehat Kahani is providing online free GP consultations with our promo code Kahani 2021. As part of our awareness sessions today, our topic for discussion is best foods to break the fast or iftar with. And for the discussion on our panel, we have Dr. Mishal Parvez. She's a consultant clinical nutritionist who did her undergrad and postgrad degrees from Kinnaird College, Lahore. She's currently assisting the government of Punjab as a nutritionist on maternal, neonatal, and child health, as well as on food fortification. She has recently joined Sehat Kahani as a consultant nutritionist. Welcome, Dr. Mishal Parvez. Thank you so much, Dr. Sadaf. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Okay. Let's begin. I'll begin with my first question that what is the main concept behind intermittent fasting or roza, like any of these, and how good is it to fast for our body and health in general? सो बेसिकली रोज़ा जो है वो हमारे लिए तो एक उसकी जो है एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है और एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। बहुत से रिलीजन्स जो हैं जिनके अंदर जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक हर रिलीजन में ही एग्जिस्ट करता है। इस्लाम में हमारे लिए इट्स अ होल कंप्लीट मंथ ऑफ फास्टिंग एंड फॉर सम अदर रिलीजन्स दे हैव सम पर्टिकुलर डे, सम पर्टिकुलर टाइम ऑफ फास्टिंग। And intermittent fasting actually has come out of this. It's basically a very good approach to maintain a healthy lifestyle for many people who were not able who are not able to follow a complete weight loss regime, तो उनके लिए जो intermittent fasting की एक approach ऐसी निकाली गई जिसके अंदर उनको कुछ days बता दिए जाते हैं या एक दिन में एक पूरा एक time slot उनको दे दिया जाता है in which they are allowed to eat and in which and the rest of the time that they are not allowed to eat. So for us Muslims, Roza, like I said earlier, it has a religious importance as well, and additionally, it also gives us a lot of health benefits. So when we're talking about the health benefits, of course, while we're fasting, it obviously is a very good approach for weight loss. जिनको अपना weight maintain करना है, some people who are overweight or who are obese, it's very important कि वो जो है fasting कर सकते हैं. And not just, it's not important कि सिर्फ वो रमजान में ही fast observe कर रहे हैं. Any time throughout the year when they feel comfortable, तो वो उसमें रोजा जो है रख सकते हैं, एक दिन का जो है फास्ट कर सकते हैं, फॉर अ वीक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके लिए क्या आसानी है और क्या टाइम स्लॉट्स उनको सूट करते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स बेनिफिट्स, रोजा जो है जब आप एक रूटीन में जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, जब आप फास्ट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बॉडी को जिस वक्त जैसे हमारी एक रूटीन होती है कि हम एवरी 3 to 4 आवर्स के बाद हम कोई स्नैक ले रहे हैं, कोई मेन मील्स ले रहे हैं, सो बॉडी को एक कंसिस्टेंट सप्लाई जा रही होती है फूड की, और उसी में से जो कुछ एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन योर लिवर, इट्स स्टोर्ड इन योर मसल्स, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि बॉडी नहीं कर रही, वो एज अ फैट स्टोर हो जाती है। तो while you're fasting and when for example you're observing a 16-hour fast and your body is not getting any food, it's not getting any energy, so how is it going to give how is it going to help you in conducting your normal routine activities? सो उसके अंदर क्या होता है कि फिर बॉडी जो है लिवर के अंदर ही, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, स्टोर्ड एनर्जी है, बॉडी उसको यूज करना शुरू करती है, और जब वो एनर्जी आपकी लिवर में से, मसल्स में से वो ग्लूकोज यूज हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फैट स्टोर्ड होता है, बॉडी उसको एज अ रिजर्व यूज करती है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। सो जिस वक्त आपका वो फैट जो है, जब बॉडी उसको मेटाबोलाइज करना शुरू करेगी, सो नेचुरली इट्स गोइंग टू लीड टू वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस की भी जो थंब रूल है कि आपका जो कैलोरीज जितनी आप इनटेक कर रहे हैं, दे शुड बी लेस देन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज विच आर गोइंग आउट। सो वंस व्हेन यू आर नॉट ईटिंग और आपकी बॉडी जो है अपने ही रिजर्व्स को भी यूज कर रही है और एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर रही है, तो इट बिकम्स अ गुड अप्रोच फॉर वेट लॉस। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने मेंशन किया कि बॉडी जब अपने ही स्टोर्ड रिजर्व्स को यूज कर रही होती है, तो इससे जिन लोगों को इसके अंदर मतलब ये होता है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज जो है वो बॉडी की मेंटेन होती है, जब आपका फैट यूज होता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन होता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, दैट्स गोइंग टू फ्लश आउट, and so this is how fasting really helps in maintaining a good healthy weight
and it will also help in keeping up some metabolic factors को भी जो है वो ठीक रखती है. और उसके अलावा even it has been proven कि आपके कुछ inflammatory markers जो हैं body में वो भी अगर आप regularly fast करते हैं तो even those body also helps to keep them at a normal level. Right, very well explained. I'm sure कि audience को काफी इसका concept आ गया होगा कि during fast आपकी body में कौन से chemical changes हो रहे होते हैं. Anyways, अब ये जो fast तो हम मुसलमानों का एक ये sacred month है, तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारी ईटिंग हैबिट्स. हमारी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल जो है वो बर्बाद हुई होती हैं इन रमजान. So my next question will be that what are the good options, in fact, what are the best options to break our iftar with? Not only the foods as well as the drinks. Okay. So like you said कि हमारी जो है फूड हैबिट्स बिल्कुल बर्बाद हुई होती है रमजान में. यू वेरी राइट, बिकॉज जब हम लोग फास्ट करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी डिजर्व करती है कि पता नहीं कितना खाना और हर तरह का खाना हम खा सकते हैं. ये चीज तो हमें लगता है कि हमने सारा दिन बड़ी ही वो जो है ना काटी है, तो अब हम कुछ भी खा लें और किसी भी तरह खा लें. और which basically after doing that you are actually losing all the essence of a रोजा. रिलीजियसली भी कि जो हमें बताया जाता है कि आप उसके जो है एक म्याना रवि इख्तियार करें, हम उसको भी बाईपास कर जाते हैं और हम अपनी बॉडी का भी ख्याल नहीं रखते कि हम किस तरह से जो है हमने हमारी जो कोर डाइटरी हैबिट्स हैं वो कितना इसको खराब करें. So like you asked that what are the foods that first of all we should not open our fast with. अच्छा, इसमें कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि जिस वक्त अफ्तारी में हम सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट ड्रिंक्स, तो जितनी भी शुगर की ड्रिंक्स हैं, जितनी ज्यादा इस तरह के शरबत हैं जिसमें हाई शुगर है, हाई ग्लूकोज है, वो बनाई जाती है इन द नेम ऑफ कि जी हमारे शुगर लेवल लो हुआ होता है तो हम ये पी सकते हैं. ऑफ कोर्स आप पी सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमें देखना होता है कि शुगर कंटेंट जो है इट हैज टू बी वेरी मॉडरेट. आपको वो चीजें नहीं लेनी जो कि बहुत ज्यादा हाई शुगर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट है, या जैसे फ्राइड फूड प्रोडक्ट हैं. ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि जिससे आप रोजा नहीं खोल सकते. रोजा आपको नहीं बेसिकली खोलना नहीं चाहिए. होता क्या है कि हाई शुगर फूड से क्यों मना किया जाता है, क्योंकि ये जैसे ही लाइक अ डॉक्टर यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि जैसे हम एक हाई शुगर वाली चीज कोई भी फूड है या ड्रिंक है, जैसे हम अपने अंदर वो लेते हैं तो इट्स गोइंग टू क्रिएट एन इंसुलिन रश इन आवर बॉडी, क्योंकि वो जैसे ही ब्लड शुगर को हाई करती है जाके, क्योंकि जो शुगर है वो एक सिंपल ग्लूकोज है, और वो ग्लूकोज जाते ही हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एक रश पैदा करती है. तो वो जब स्पाइक करेगी तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो है बॉडी काउंटर इफेक्ट में इंसुलिन जो है वो रिलीज करती है. तो वो जो हाई इंसुलिन है वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो कि अचानक से एकदम से जो उसका स्पाइक जो है वो आती है बॉडी में, तो विच इज ऑब्वियसली नॉट हेल्दी. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसी चीजें जो है वो ना लें जिसके अंदर हाई शुगर है. उसके ऐसे कोई भी ड्रिंक्स, कोई भी शरबत है, कोई भी इवन फ्रूट जूसेस भी जो है, फ्रेश फ्रूट जूसेस आर आल्सो नॉट रिकमेंडेड एक्सेप्ट फॉर दोज फ्रूट जूसेस जिनके अंदर शुगर कंटेंट कम हो. Secondly, it's also a very common practice to break your fast with caffeinated beverages like tea or coffee, which is also not recommended because your stomach is already high in acid. एक acidic environment हुई होती है जिस वक्त आपने रोजा रखा हुआ है, और ऊपर से आप फिर जो है कैफीन वाली चीजें लें. Similarly, we do not recommend कि आपको इवन अगर आप पानी भी ले रहे हैं तो that should also not be too hot or too cold. Everything should be at room temperature. Then we don't recommend breaking your fast with energy drinks or any soft drinks or carbonated beverages. ऐसी कोई भी चीजें, fruit punch या जैसे powder juices होते हैं जिसके अंदर फिर आप पानी मिला के तो उसका जूस बन जाता है, इन चीजों से आपको जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि ये आप ना लें. And later on we will talk about that what can be the right foods and drinks to break your fast with. So ओके, अभी आपने जिक्र किया था कि पानी भी, अगर हम जो ड्रिंक्स में अगर पानी भी पी रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड. एंड वी ऑल आर जनरली वेरी वेल अवेयर दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस एज वेल एज आवर स्किन स्पेशली. एंड हाइड्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग फास्टिंग. So can you shed some light on the importance of water, how important water is to maintain the proper hydration during our fast?
No, obviously water is extremely important and this is something that you should obviously be breaking your fast with apart from taking dates. आपको पानी ही पीना है. लेकिन मेरा उसमें जो टेम्परेचर का मैंने मेंशन किया था उसका ये है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है you should always take something which suits your body temperature. कि किसी भी तरह उसको टेम्परेचर शॉक नहीं लगना चाहिए. And coming to maintaining the level of hydration in the body, of course water is the best and the only source which should be there to maintain hydration. बट ऑब्वियसली जैसे हमारे 16 to 18 आवर्स का फास्ट होता है तो उसके अंदर इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन अ हाइड्रेशन लेवल एंड स्पेशली कंसिडरिंग दैट समर्स आर कमिंग. सो उसके अंदर इंक्रीज स्वेट होता है. उसके अलावा बॉडी ने थ्रू आउट द डे यूरिन भी प्रोड्यूस करना है, सो दैट इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉस ऑफ वाटर. सो बेसिकली अब आपके पास जो एक विंडो है अफ्तारी से लेके नेक्स्ट सहरी तक, उसके अंदर आपने ये देखना है कि आपने 2 लीटर्स ऑफ वाटर और विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसको आपने कैसे पूरा करना है. अगेन उसके अंदर एक मिथ प्रैक्टिस जो है वो ये होती है कि अफ्तारी के टाइम क्योंकि जाहिर है प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है, एकदम से पानी के जो है पिए जाते नेचुरली बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है. बट देन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब आप एकदम से पानी या कोई भी फ्लूइड या कोई भी जूस वगैरह पी लेते हैं तो आपने भी फील किया होगा कि बॉडी जो है बहुत वॉबली सी हो जाती है, एकदम से आपको जो है नींद से आती है, आपकी टांगों में जो है वीकनेस होने लग जाती है. दैट्स बिकॉज कि हम कोई भी मील या कोई भी फ्लूइड जब एकदम से पेट में इतने लंबे फास्ट के बाद डाल देते हैं तो हमारी सर्कुलेशन जो है दैट वो जब हमारे स्टमक के अराउंड होना शुरू होती है तो मैक्सिमम सर्कुलेशन, मैक्सिमम ब्लड फ्लो वहां पे होता है, जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस होती है. सो कहने का मकसद ये है कि आप अगर आपने जैसे रोजा खोला है, आपने 1 ग्लास पानी पिया है, उसके बाद आपने कुछ खाया और ग्रेजुअली स्टेप अप योर वाटर इनटेक टिल योर नेक्स्ट सहरी. आहिस्ता आहिस्ता पानी का जो इनटेक है उसको बढ़ाएं. नॉट लाइक कि एक साथ आपने 5 ग्लास पी लिए, एक साथ आपने 6 ग्लास पी लिए और उसके बाद फिर आपका स्टमक भी फिलअप हो चुका है, यू कांट ईट एनीथिंग एल्स. तो ये चीजें जो है ये आपको इस तरह से अपना हाइड्रेशन जो है उसको वर्क करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम वाटर आप ये भी कोशिश करें कि ये जो अफ्तारी से नेक्स्ट सहरी की विंडो है उसके अंदर कैफिनेटेड बेवरेजेस जो हैं वो कम से कम लें. एज पर नीड लें, जितना आप मतलब 1 कप चाय ले ली, 1 कप कॉफी ले लिया, लेकिन कोशिश करें कि उससे ज्यादा ना लें क्योंकि ये भी आपकी जो बॉडी में से पानी जो एंटी डायरेटिक्स होते हैं तो पानी जो है उसको जितना ज्यादा ये निकालना शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जितने वो ऐसे फ्लूइड्स लें जो कि बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करें. Right. In continuation with what you were talking right now, I would also like you to emphasize on discouraging the soft drinks, the use of soft drinks after the fast. Can you please Definitely. emphasize that, please? डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है इसका यूज ड्यूरिंग अफ्तारी एंड ऑनेस्टली सो मेनी पेशेंट्स कम टू अस विद स्पेशली मतलब ये ट्रेंड बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का और एनर्जी ड्रिंक्स का कि ये बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं. एंड लाइक आई सेड कि बच्चे भी जब रोजा रखते हैं तो फिर पेरेंट्स को होता है कि अच्छा अब इन्होंने जो कहा है इनकी फरमाइश पूरी कर दें, और एंड अगर फरमाइश जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है तो वो भी जो है पूरी की जा रही होती है. सॉफ्ट ड्रिंक्स का ना सिर्फ रोजे में बल्कि मतलब किसी भी सूरत हाल में उसका जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और किसी के लिए भी एट एनी एज ग्रुप. अगर हाँ ठीक है कभी ओकेजनली सोशल ओकेजन्स पे आपको ले लेनी पड़ती है दैट इज फाइन, लेकिन उसके अंदर भी आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उसकी अमाउंट आप बहुत ज्यादा रखें. So the soft drinks is that number one, they have a very high. I cannot emphasize on this how much they are high in sugar content. अगर आपकी एक बॉटल है तो उसके अंदर approximately 5 to 6 tablespoons of sugar जो है which that is present. So can you like imagine eating all of that sugar at once? No. But वो ऐसे processed होती है कि हमारे लिए इतनी वो palatable होती है कि वो हम उसको soft drink की form में consume कर लेते हैं. Secondly, these drinks are very high in phosphoric acid. एंड फॉस्फोरिक एसिड वंस इट गोज इनटू योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो फॉस्फोरस और कैल्शियम का एक 2:1 का जो रिलेशन होता है, उसका रेशो होती है, ये उसको जाके डिस्टर्ब करता है. ये फॉस्फोरिक एसिड जो बॉडी में हाई होता है तो कैल्शियम की उस रेशो को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो ब्लड में से बोन्स में से जो कैल्शियम है वो एक्सट्रैक्ट करनी शुरू करे. तो इवेंचुअली आपकी बोन्स में भी डेफिशिएंसी हो रही है, फिर उसको पूरा करने के लिए वो ब्लड से ले रही है, तो इस तरह से आपकी जो बॉडी की रेशो है फॉस्फोरस और कैल्शियम की वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है. एंड जैसे पहले भी हमने बात की कि शुगर कंटेंट क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है और शुगर के इतने ज्यादा नुकसानात हैं, ना सिर्फ वेट गेन पे बल्कि आपकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको भी स्टार्ट करने में, उसकी भी सिम्टम्स लाने में शुगर का बहुत ज्यादा रोल होता है. So eventually it leads to diabetes and so many other ailments
that sugar consumption should be stopped in any form altogether. Very true, very true. Before we move forward, I think let's first discuss all the good options that we can have, like the food options and the drink options to begin our iftar with, and especially with regards to the nutritional value, which food groups should be included and which should not. Okay. So first of all, जो हमारा टॉपिक भी है कि which foods to break अफ्तार with, first of all तो जैसे हमारी एक नॉर्मल एक रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस भी है कि हम खजूर से डेट से जो है रोजा इफ्तार करते हैं, एंड आई थिंक कि इससे ज्यादा अच्छी ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकती. सो यू शुड ऑलवेज ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स. व्हाई? बिकॉज डेट्स जो है इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर विच कंटेन्स ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी है. उसमें ये है कि ऑल्दो उसके अंदर ग्लूकोज है, लेकिन वो आपकी बॉडी की जो शुगर है उसको उस तरह से स्पाइक नहीं करती जैसे कोई और शुगर बेवरेज जो है वो करे. तो आपकी बॉडी की जो शुगर लेवल्स हैं उसको स्टेबलाइज करती है, उसके इंसुलिन हाइक नहीं होती. उसके अलावा डेट्स जो है इनके अंदर पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए एंड दे आल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. उसके अलावा टॉकिंग अबाउट ड्रिंक्स, तो ड्रिंक्स जो हैं जैसे हमने पहले बात की कि पानी तो खैर है ही, लेकिन उसके अलावा देयर सर्टेन ड्रिंक्स व्हिच आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल. जैसे आप होममेड लेमनेड जो है ये स्कंजबीन जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ड्रिंक. उसके अंदर आप बस कोशिश करेंगे थोड़ी सी आप कम रखें चीनी. आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन लस्सी जो है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. ठीक है, तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं. सत्तू के ड्रिंक्स बहुत अच्छे मिलते हैं. घर पे इमली का शरबत बनाया जा सकता है. स्कंजबीन जैसे मैंने मेंशन किया कि ये चीजें बनाई जा सकती हैं. फ्रेश फ्रूट जूसेस जो हैं उसका इस्तेमाल आप कोशिश करें कि कम करें. रादर ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम फ्रूट्स, ट्राई टू ईट देम रादर देन मेकिंग अ जूस आउट ऑफ देम. तो ये कुछ अच्छी जो है ड्रिंक की ऑप्शंस हैं. उसके अलावा अगर आपने जो है फूड्स की बात करनी है तो उसके अंदर जैसे हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम फ्रूट चाट वगैरह लेते हैं. उसके अंदर कोशिश करें कि जितने ज्यादा फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं. फूड और जो आपकी बेसिक अफ्तारी है ना उसके अंदर आपने ये देखना है कि दो चीजें आपको मिल रही हैं. नंबर 1 ग्लूकोज एंड नंबर 2 प्रोटीन्स. सो दीज बोथ हैव अ वेरी एसेंशियल रोल, क्योंकि जब आपने इतना लंबा फास्ट किया है आपकी बॉडी को जो है ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ग्लूकोज लाइक आई मेंशन कि आपने स्कंजबीन, लस्सी इनसे ले ली. और सेकेंडली जो प्रोटीन है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जैसे दूध से या दही से स्मूदी बना ली, लस्सी बना ली. उसके अलावा आप दही का इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं. आप फिर यखनी ले सकते हैं, ये जो ब्रॉथ होता है चिकन या मटन का ब्रॉथ जो है ये ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूप, या इसको आप वैसे ले. ठीक है, फूड ग्रुप्स की आपने बात की तो फूड ग्रुप जो है वो हमने सारे ही इंक्लूड करने हैं. उसके अंदर आपके ग्रेन्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हों, ये सारा कुछ हो. बट द की आइडिया, द की एलिमेंट हियर इज टू टेक एवरीथिंग स्लोली, टू टेक एवरीथिंग ग्रेजुअली, not to take everything at once and not to not to underfeed yourself. राइट. एंड आई थिंक ये जैसे आपने कहा फ्रूट चाट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो एक अच्छा ऑप्शन है जो ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे होते हैं लोग. इसी तरह आई थिंक चना चाट भी जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो आई थिंक चने जो है किडनी बीन्स, लेंटल्स और ये चिक पीस, ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है. ग्रुप में जितने भी आ जाते हैं उसमें पीज हैं, लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, रेड बीन्स, किडनी बीन्स, वो सारा कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं. आप उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ उसकी डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं. इवन ये कि आप सैलड्स बहुत अच्छे बना सकते हैं. सैलड्स का हमारे यहाँ रुझान थोड़ा कम हो जाता है कि लोग समझते हैं कि ये बड़ी बोरिंग सी चीज है, बड़ी टेस्टलेस सी चीज है. ऐसा नहीं है. यू कैन इनकॉर्पोरेट चिकन, यू कैन इनकॉर्पोरेट फिश, यू कैन इनकॉर्पोरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजेस, और आप उससे मजे के सैलेड्स जो है वो बना सकते हैं. यू कैन टेक देम एट द टाइम ऑफ योर इफ्तार. तो आपने बस ये देखना है कि जो स्टार्च जो है वो हेल्दी हो, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हो, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस्ड चीज ना हो. एंड यू हैव टू मेक इट अ कॉम्बिनेशन विद फ्रूट्स, विद डिफरेंट वेजिटेबल्स, एंड यू हैव टू टेक इट स्लोली थ्रू आउट. बट उसमें और बस जितने भी फ्राइड से आप जो है अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑयली स्टफ लेते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वेस्ट लाइन्स बढ़ रही हैं. सबसे ज्यादा आपको पता है कि वेट जो है वो रमजान के बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट जो है वो बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि हालांकि मतलब रोजे भी रख रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट जो है वो बढ़ गया. ऑल बिकॉज कि हमारी इफ्तारियां जो हैं उसके अंदर हम ये प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं जिससे हमें एम्प्टी कैलोरीज मिल रही हैं सारी. राइट. अच्छा, लाइक बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट. आप खाएं सब कुछ बट इट शुड बी इन अ बैलेंस.
The balance should be maintained. So for that, of course, the portion size matters. So can you say Yes. something about the importance of controlling your portion sizes? जी, ओके। ओके, सो पोर्शन साइज जो है सबसे पहले तो जैसे अगर नॉर्मली भी आप अपनी डाइट यू आर वाचिंग ओवर योर डाइट और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर भी थंब रूल यही होता है कि आपने अपना सबसे पहले पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। As a nutritionist, we allow people to eat almost everything except for things which are really bad for your health. And the basic thing that we tell them is to control portion size because, like I mentioned earlier, कि calories in should be less than the calories out. ठीक है? तो जो आपने ले आप सब कुछ इवन अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं यू हैव टू टेक देम इन मॉडरेशन यू हैव टू कंट्रोल देयर पोर्शन साइज एंड सेकेंडली विद एस्पेक्ट टू फास्टिंग उसके अंदर पोर्शन साइज की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जिस वक्त आपने अफ्तारी की है और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि अच्छा हमने सारा दिन रोजा रखा है बहुत भूख लगी हुई है जो सामने आ रहा है बस खाते जाओ डालते जाओ अंदर डालते जाओ कोई उसमें रिस्पेक्ट नहीं किया जाता पोर्शन साइज और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता होता ये है कि आप खा तो लेते हैं लेकिन आपकी बॉडी को जो एनर्जी है ना वो स्लोली उसको ग्रेजुअली चाहिए होती है जब आप एकदम से बहुत बड़ा पोर्शन खा लेते हैं तो बॉडी को जितनी उस वक्त एनर्जी की जरूरत है वो उसमें से ले लेता है और बाकी पोर्शन जो है उसके अंदर से जो एनर्जी निकली है उसको एज फैट स्टोर कर देता है तो आपने खा तो लिया लेकिन जितना आपने एक्स्ट्रा खाया वो सारा फैट की फॉर्म में स्टोर हो गया एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक रीजन कि रमजान के बाद लोगों के वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्यों क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे हम बस खाते रहते हैं हमें ये सोचते ही नहीं है कि हमने कितने पकौड़े खा लिए हमने कितने समोसे खा लिए हम उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते कि बस भूख लगी हुई है खाना है तो वो होता फिर ये है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप ले रहे हैं दैट इज स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी एंड दैट्स व्हाई हैविंग पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इवन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैंने किसी को रिकमेंड भी करना हो आई टेल देम कि आप एक पकौड़ा खा लें एक समोसा खा लें बट इससे ज्यादा नहीं ताकि आपको एक वो चीज आप में खा भी लें और आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जाए Right. So actually, if you take a balanced diet, then you should actually be losing some weight by the end of Ramadan, not gaining it. If you take हाँ कि proper diet. आप रखना उसके बाद भी आप कंप्लेन करें कि वेट बढ़ रहा है वजह देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डाइटरी हैबिट राइट तो इस वजह से जो है दिस इज व्हाई वेट जो है वो बढ़ता है Right. अच्छा डॉक्टर मिशाल एक टर्म होती है माइंडफुल ईटिंग व्हाट डू यू मीन बाय माइंडफुल ईटिंग फ्रॉम इफ्तार टिल सहर ओके सो माइंडफुल ईटिंग बेसिकली तो नॉट जस्ट इन रमजान बट अदरवाइज भी जिस वक्त भी आप खा रहे हैं माइंडफुल ईटिंग जो है आपको करनी चाहिए इस टर्म का मतलब ये होता है कि माइंडफुलनेस इज बेसिकली कि हाजिर दिमागी जो है वो आपने दिखानी है खाते वक्त कि मैं क्या चीज खा रहा हूँ यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये हेल्दी है भी या नहीं इसका मैं कितना पोर्शन ले रहा हूँ वेदर इट्स गुड फॉर मी इट्स नॉट गुड फॉर मी तो वो जो चीज है ना कि आपने बस माइंडलेसली नहीं खाना माइंडफुल होके खाना है कि ये चीज मेरे लिए क्या ये हेल्दी फैट के अंदर पकी हुई है क्या ये पुरानी तो नहीं है क्या इसका पोर्शन साइज वेदर इट्स टू बिग फॉर मी वेदर इट्स टू लेस फॉर मी तो दिस थिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज व्हाट यू कॉल माइंडफुल ईटिंग ठीक है कि मेरा उसका पोर्शन क्या है ये कौन सा फूड ग्रुप है मैंने दिन में इसी फूड ग्रुप की पहले तो नहीं कितनी चीजें खाई और वो कोई भी चीज हो सकती है सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फास्टिंग तो उसमें बहुत जरूरी माइंडफुल ईटिंग उसके अंदर किस तरह से जरूरी है कि आपने ये देखना है कि जब आपने इफ्तारी की है वेदर यू आर गेटिंग ample amount of fruits and vegetables because they are full of vitamins and minerals and they are the basic sources जहाँ से आपको बहुत essential vitamins and minerals मिल रहे हैं so it's very important कि आप ये देखें कि मैंने fruits और vegetables जो हैं वो optimum amount में खाए हैं you have to see कि मेरी हाइड्रेशन जो है वो मैंने उसमें मतलब जो मैंने सारा दिन पानी का जो लॉस हुआ है वाटर लॉस हुआ है मैंने उसको फुलफिल में कर रहा हूँ या नहीं थर्डली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये देखना है कि उस चीज के अंदर फाइबर कितना है जैसे रमजान में जैसे हम नहीं खा रहे पूरा पूरा दिन हमारी बॉडी को फाइबर चाहिए फॉर ऑप्टिमम डाइजेशन सो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट दैट थिंग कंटेन्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फाइबर एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई स्पाइसेस तो नहीं है बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं है उसका पोर्शन साइज जो है वो कितना है देन सेकेंडली यू हैव टू ऑल्सो सी कि हेल्दी फैट्स जो है मेरी बॉडी के अंदर वो जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल है या नट्स हैं या चिया सीड्स वगैरह हैं ये दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट्स यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये चीजें भी आपके अंदर जानी चाहिए अगर आप मीट ले रहे हैं मीट की कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं इट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड इट शुड नॉट बी अ फ्रोजन फूड जिसको आपने बस फ्राई किया और खा लिया इट शुड बी समथिंग विच इज होममेड तो ये जो है दिस इज बेसिकली माइंडफुल ईटिंग क्या आपने ये देखना होता है कि जितने भी फूड ग्रुप हैं
और उन सब के अंदर से कुछ ना कुछ जो है मेरी बॉडी के अंदर इफ्तार टिल सहरी जो है वो जा रहा है। एंड माय रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन वुड बी कि आप ये मत प्लीज सोचें कि इफ्तारी जो है ना बस ये यही 1 घंटा है कि बस इसी में ही मैंने खाना है, ऐसा नहीं है। जस्ट ब्रेक योर फास्ट विद अ खजूर, विद अ डेट, हैव सम वाटर, हैव सम ड्रिंक, उसके बाद आप नमाज पढ़ें और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं। यू नो, ट्राई टू ईट समथिंग एट 2 to 3 hours ऑफ इंटरवल। थोड़ी सी इफ्तारी करें, उसके बाद स्पेयर सम फॉर द डिनर, वो करें, फिर उसके बाद आप सहरी करें। तो यूं आप बल्कि खुद भी जो है महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ एनर्जी है। एकदम से जो इफ्तारी करके लेथार्जिकनेस और वीकनेस होती है वो आपको नहीं होती जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर पोर्शंस में खाएं। बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन। बस जो खाएं आप, जो खाना चाहते हैं खाएं, मगर सोच समझ कर खाएं। दैट्स माइंडफुलनेस, राइट? सो वी आर रनिंग। इसको आराम से खाएं, आपको खाना मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता, आराम से खाएं। True. We are running out of time very quickly. So one more aspect, one more question that I want to ask is about the breastfeeding mothers. Breastfeeding mothers बहुत हमें ये टेलीमेडिसिन पे भी बहुत अक्सर ये लोग कॉल करके क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, कैन आई फास्ट और नॉट? तो फास्ट कर सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या नहीं, एक तो ये भी बताइएगा, प्लस सम टिप्स फॉर दीज ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स. What should which tips can they take care of before starting their fast? Okay, first of all, I think the total decision of whether they should continue breastfeeding or not should be dependent on their doctor or their physician as per their recommendation. If they feel that they can go through the whole day, without eating anything, then it's totally up to them. It's their decision. But like I said, कि उसके अंदर उनको एक physician का, उनके doctor का, जिसको उनकी पूरी history पता है, उससे जरूर मशवरा जो है वो लेना चाहिए कि वो ये चीज कर सकते हैं या नहीं। Because right after pregnancy we see a lot of deficiencies, micronutrient deficiencies जो हैं बहुत ज्यादा prevalent होती हैं। So उसके अंदर मैं कोई एक जो है वो legit ये नहीं कह सकती हाँ या ना कि करनी चाहिए या नहीं। उसके अंदर पेशेंट को अपनी हिस्ट्री जो है वो देखनी चाहिए पहले, और ये बहुत जरूरी है देखना कि हाउ गुड शी फील्स। अगर उसको वीकनेस हो रही है देन ऑब्वियसली इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन it's the decision of the healthcare provider. Secondly, for those who feel absolutely normal, it's very important कि उनके लिए भी यही guidelines हैं कि एक तो आप डाइट वगैरह बिल्कुल भी ना करें। ये मत सोचें कि मेरा अभी वेट जो है, मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट ज्यादा है तो मैंने अभी अपनी डाइट जो है उसको कम करना है, या मैंने कैलोरीज अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी है। जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लें और सब फूड ग्रुप से लें, जो है अपने फूड्स की इनटेक को पूरा करें। स्पेशली उसके अंदर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर एंड वाटर इनटेक जो है वो अपनी बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। और उसके अलावा जो भी उनको पोस्ट प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं उनके फिजिशियन की तरफ से, वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लें। और इसमें जाहिर है कि ऑल्सो लाइक दैट दे हैव टू फीड फॉर 2। सो अगेन आई वुड रिकमेंड कि कोई भी ऐसी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो उस वक्त ये ना सोचें जितना उनका टाइम चल रहा है फीड का कि मैंने जो है डाइटिंग करनी है, और अपनी कैलोरीज को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट ना करें। अपनी डाइट के अंदर ऑप्टिमम पोर्शंस रखें, सब कुछ खाएं एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज फूड्स जो कि मना किए गए हैं। Right. Thank you so much, Dr. Mishal. It was not a restricted topic, but I think we have covered all the major aspects of this topic. And it was truly a very informative session, and I think the audience will make the most of it. Thank you so much. And you need me any other time. Thank you so much. Thank you, Dr. Sadaf. Thank you so much for your time. And people, you all stay tuned for our next session tomorrow. There is always a very interesting topic. We are holding these awareness sessions of just 30 minutes. These are short sessions, Monday to Friday. And I hope you'll like the other topics as well. These are all very informative and very essential topics to be discussed. So until next time, you'll have some other audience, some other host, and some other doctor tomorrow for in the panel. Till then, take care. Allah Hafiz.